Good morning, class 7. Welcome back. So, where we are moving? South Africa. So, yesterday we read about the South Africa, where it is located, what are the capitals of the South Africa, and what is the other name of South Africa. Yesterday we discussed. So, we will do the short recap of the yesterday's class. Okay, I will ask you the question and you will give me the reply. But fast, don't take time. Okay, question number 1. Where it is located? Yes, Kunal. It is between Antarctica and Indian Ocean. Very good. Second question. Yes, Komal. What is the other name of South Africa? Other name. I'm asking you name. Yes. Payal. Rainbow Nation. Now, sit down. Both of you sit down. Now, the third question. What were the capitals of South Africa? Yes, Rishabh. Zulu. It's Osa. It's Hosa, right? X is silent here. No, these are not the capitals. Yes, yes. It's not Elizabeth. It's Pretoria, Cape Town, and Bloemfontein. It's Bloemfontein. Okay. Now, name some ethnic groups of the South Africa. Name some groups of South Africa. That's Zulu. Okay. Now all are aware that what we are reading. Okay. Now we are still in the sky. Moving to South Africa. Now we will continue. Okay then. Sit down. Come to the map. South Africa has a diverse and extensive coastline that stretches approximately 2,798 kilometers. That is 1,739 miles along the southernmost part of the African continent. Now, इसके यहाँ पर क्या बताया गया है? Stretch over, that means इसका एरिया कितना है? साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट कितना एरिया हमारा लैंड का कवर करता है? हाउ मच लैंड इज कवर्ड बाय द साउथ अफ्रीका? दैट इज अराउंड 2798 kilometers. Look at the map. Come to the map. अगर हम ये बात करें तो ये तो व्हाट इज द क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट एरिया covered by South Africa? Yes, Atul. How much area is covered by the South Africa? How much area is covered by the South Africa? Fast! Look into your books. Pay concentration here. Yes, Rishika. 2,798 kilometers. Okay. बच्चे यहाँ concentration रहेगा तो चैप्टर लर्न हो जाएगा. आ रही है समझ में बात? Otherwise, at the exam time you will get exhaust कि मैम लर्न नहीं हो रहा. So pay attention in the class only, so you will learn here only. Okay, sit down your book. Now, South Africa is located on the southern tip of the African continent. It is bordered by Namibia to the northwest, Botswana and Zimbabwe to the north, Mozambique and the East Swatini, that is the Swaziland to the north, and Lesotho. देखिए ये इसकी नेबरिंग है, मतलब ये अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर कर रहा है. कौन कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर को ही शेयर कर रहा है? देखिए, चलिए कलर हम दूसरा ले लें. विच कलर? ग्रीन. ओके, ग्रीन. देखिए, साउथ अफ्रीका इज हियर एंड इट्स sharing its border with it's Namibia, then Botswana. It's 1, 2,
3 is Zimbabwe, 4th is Mozambique, then little bit is Tanzania, and the 5th, and the 6th one is Lesotho. It's Lesotho. 6th. So Africa share its border with 6 what? 6 countries. Now, name them. What are the names? One by one. One by one. Class, one by one. One by one. First one. Second one. Third one. Then Mozambique. Mozambique. Then Eswatini. Then Lesotho. A country that is completely surrounded by South African country. South Africa extended approximately 30 to 35 degrees south. अब ये जो हमारा साउथ अफ्रीका है ये साउथ की तरफ है, सबसे ज्यादा एरिया वहां कवर करता है. हाउ मच? अराउंड 30 टू 35 डिग्री. टिल है थोड़ा सा, अगर हम देखें थोड़ा सा ये इधर की तरफ झुका हुआ है. ये ऐसे शार्प नहीं है, देखो है क्या नीचे से ऐसा शार्प. थोड़ा सा इसका जो नीचे का एरिया है इट्स लिटिल बिट ब्रॉड. तो ये कह रहे हैं कि इसका अगर हम एंगल देख के चले यहाँ पर तो ये एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का. तो हमारा जो साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा जो लास्ट टिप पॉइंट है और थोड़ा सा टिल साइज है, थोड़ा सा नीचे से ब्रॉड है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 टू 35 डिग्री. आगे बात समझ में क्लियर है? एनी डाउट? अब है साउथ लैटिट्यूडली एंड 16 टू 33 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडली. अगर हम इसको साउथ से और ईस्ट से लेके चले, देखिए ये यहाँ से भी ब्रॉड है, ब्रॉड है ये एरिया. देखिए आप, इसको क्लियर करके दिखाऊं. लुक एट हियर. देखिए इसका नीचे का जो बेस है ये देखो आप, अगर हम ऐसे लेके चले तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है. क्लियर मेजर हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये इधर से अगर हम लेके चले तो ईस्ट की तरफ ज्यादा फैला हुआ है, फैला हुआ है. तो ये यही बात कह रहा है कि इट फॉर्म्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड किधर किधर ज्यादा स्प्रेड है ये? ईस्ट की तरफ. किधर ज्यादा स्प्रेड है? ईस्ट की तरफ. शैल वी मूव? एनी प्रॉब्लम? 30 degree. South Africa's central position in the southern hemisphere gave it an important place in the world of geography. It is recognized for the diverse landscape ranging from coastal areas to the mountains. अब हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? माउंटेन्स भी होंगे, हिली एरियाज होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, फिर प्लेट्यूज होंगे, सावनाज होंगे, हमारे ग्रासलैंड. कहा जाता है जैसे हमारी इंडिया में हम ग्रास देखते हैं छोटी स्मॉल होती है, ज्यादा लेंथ नहीं होती है ना, ज्यादा लेंथ की नहीं होती. यहाँ आपको दिखेगी मेरी हाइट की ग्रासलैंड, बहुत लंबी लंबी ग्रास. ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम. Johannesburg, Cape Town, Durban, Pretoria, and Port Elizabeth. देखिए, in this chapter we will study about the different types of the grassland which are available in the world. Look at your yellow paragraph here. Extended learning. It is mentioned. It is very important one. The question is arises from here also. Name the different type of grasslands which are available in the world. First one is ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. फर्स्ट वन कौन सी है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. फर्स्ट है इसमें हमारा अफ्रीकन सावना. वास्ट ग्रासलैंड इन अफ्रीका इज होम टू आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बीफ एंड डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन. अफ्रीका में आपको मिलेगा अफ्रीका सावना. क्या मिलेगा? यहाँ पे मोस्टली जो ग्रासलैंड है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो ये लायंस है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी. एलिफेंट्स हो गए, वाइल्ड बीट्स हो गए, लॉयंस हो गए, ये यहीं पर रहते हैं मोस्टली. ठीक है, ये क्या करते हैं अपने आप को इसके अंदर हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, ये दिखते नहीं है.
ग्रासेस कम से कम इतनी हाइट की तो होती हैं कि अगर कोई भी एनिमल अगर इसके अंदर से पास आउट होता है ना तो उनको इजीली विजिबल नहीं होता है। तो ये उनका छुपने का तरीका है। इतनी हाइट की बात कर रहे हैं, इतना तो एलिफेंट दिख ही जाएगा। ना Cerrado. Cerrado, tropical savanna in Brazil, known for its rich biodiversity, include unique plant species and the diverse animal life. Then Leon's grassland in Colombia and Venezuela, characterized by vast plains and seasonal flooding, provide habitat for various bird species and aquatic life. लेकिन यहाँ पे हमेशा फ्लड रहता है, यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहती है, पानी भरा हुआ रहता है। बहुत सारा जो इसका एरिया है जो फ्लैट है, फ्लैट्यूज है, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी बर्ड सेंचुरी जो अपने आप ही बन गई। ठीक है, और एक्वेटिक लाइफ पानी भरा हुआ है तो यहाँ पे आपको फिशेस वगैरह भी देखने को मिले। नाउ फर्स्ट था हमारा ट्रॉपिकल, नाउ द सेकंड वन इज टेम्परेट ग्रासलैंड। ये आपको लर्न करने होंगे। दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द ग्रासलैंड्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड का क्या नाम है? इट्स प्रेरी। व्हाट वाज द नेम? प्रेरी। फीचरिंग फर्टाइल सॉइल एंड द डाइवर्स ग्रासेस। कहा जाता है कि प्रेरीज की जो ग्रासलैंड्स है क्यों बहुत ज्यादा हाइट की है और रिच है? बिकॉज दे हैव अ वेरी फर्टाइल सॉइल। सेकेंड इज पैम्पास। पैम्पास वाज साउथ अमेरिकन ग्रासलैंड इन अर्जेंटीना, उरुग्वे, Brazil and renowned for its fertile soil. What was the other name of grassland in Argentina, Uruguay and Brazil? It's Pampas. बच्चा आपको लर्न करने पड़ेंगे। प्रेरीज कहाँ बोला जाता है, पेम्पास कहाँ बोला जाता है, स्टेपीज कहाँ बोला जाता है, एंड डाउन्स। आजा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? These are the names of the grassland. These are the names of the grassland. स्टेपीज कहाँ बोलते हैं? रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड यूक्रेन। यहाँ पर क्या होती है? मेनली नोमैडिक हर्डिंग होती है। क्या होती है? नोमैडिक हर्डिंग पता है? When the people move from its हर्ड्स के साथ घूमते हैं अपने कैटल शीप्स वगैरह के साथ, अगर वो एक दूसरे से दूसरी जगह मूव करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? नोमैडिक हर्डिंग। आर यू गेटिंग और नॉट? यस, ओके। नाउ द डाउन्स। Temperate grassland found in Australia. What is the name of grasslands of Australia? Downs. Now, what is the geographical feature of South Africa? Now we will continue with the geographical features of South Africa. It is the world's 25th biggest country. Make it underline. It is the world's 25th biggest country. The country has a long coastline that is surrounded by the Atlantic Ocean. इसके आसपास क्या है? Look at the map. Look at the map, all of you. देखिए ये साउथ अफ्रीका हो गया पूरा। यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन नजर आ रहा है और इंडियन ओशन नजर आ रहा है। देखिए आपको वेस्ट में नजर आएगा अटलांटिक ओशन और साउथ ईस्ट में नजर आएगा इंडियन ओशन। क्लियर है? South Africa is around 1.21 million square kilometers in south, making it almost twice the size of France or 3 times the size of Germany. South Africa is divided into 9 provinces. South Africa को कितने provinces में divide किया गया है? 9. Each one is unique. The interior is mainly a flat plateau. अंदर क्या है? सब ज्यादा flat area है. Starting at around 1000 meters and increasing to 2100 meters above sea level. The coastline section range from 800 meter to sea level. अब ये देखिए अगर हम यहाँ से बात करें, ये हमारा sea level हो गया, sea है चारों तरफ, इससे अगर इसका लेवल देखा जाए तो कितना ऊंचा है ये? 2100 मीटर। ना चाहती है इसकी हाइट 2100 मीटर। क्या हाइट जाती है? ठीक। South Africa is a diverse country with a wide range of geographical features including mountains, plateaus, coastal areas, desert and more. देखिए ये भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको सब चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेजर्ट भी है तो हिली एरियाज भी है, कोस्ट लाइन भी है। कोस्ट लाइन आप सबको पता है, एक तरफ और एक तरफ लैंड।
ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आपको जोग्राफिकल फीचर्स की देखने को मिले। आ जाइए। South Africa has the several desert and the semi-desert as regions, including parts of the Kalahari Desert. What is the name of the desert which is situated? Where it is? What was the name of the desert? No one will speak. Yes, you, Garvit. What is the name of the desert? Speak loudly. Speak out. Yes, Jadeep. Kalahari Desert. Where it is situated? And not Nagaland, South Africa. We are studying about the South Africa. So you see South Africa. And the Namaqualand region along the west coast. देखिए दो हैं यहाँ पर, एक तो डेजर्ट है एंड नॉर्थ, ये नॉर्थ वेस्ट में, एंड नामाकुलन रीजन अलोंग द वेस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट लाइन है, समझ रहे हैं, ये इधर की तरफ कहीं पर, ठीक है। ये क्या है हमारा नामाकुलन रीजन, ये वाला एरिया हम मान लें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लैंड भी है, इधर वाटर भी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोस्ट लाइन, क्या कहलाएगा, colorful spring wildflower bloom. South Africa has a number of lakes and rivers, although it is not as well known for its water bodies as some other African countries. The Orange River is the longest river in the country. Make it a line. You can ask this in the GK questions also. Name the longest river of the country. Orange River. Excuse me. Excuse me. now, now the climate. South Africa experiences a diverse range of climate due to its varied physical feature and geographical location. The country is situated in the southern hemisphere. Where the South Africa located? आपको पता है ये साउथ वाला एरिया है, तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज होंगी उनको हम व्हाट वी विल से, क्या कहेंगे इन सबको, why? Because these are lying in the south, not South Africa. I am saying, हाँ. And its climate is also influenced by both the oceans, currents and its proximity to different climatic zones. देखिए दोनों तरफ ओशियन है, तो इसका वेदर कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा अनफ्लक्चुएट रहेगा, मतलब मॉइस्चर रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, कभी भी बारिश होगी, कभी भी बहुत तेज गर्मी हो जाएगी, जस्ट लाइक द मुंबई। मुंबई में एक तरफ है इसके कोस्ट लाइन, मुंबई में इसके दोनों तरफ है, तो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल ऑलवेज, right? Now, the Western Cape, including sites like Cape Town, experience a Mediterranean climate. Summers are warm and dry, while winters are mild and rainy. Make it a line. देख लीजिए यहाँ का मॉनसून कैसा है, वेदर कैसा है। Summers are warm and dry. समर कैसी होती है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ड्राई हवा है, हवाओं में जो विंड है, जो विंड्स है वो मॉइस्चर नहीं है उनके अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, तो बहुत ड्राई है। और विंटर्स में क्या होती है, माइल्ड एंड रेनी, थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं क्योंकि हवा चलती रहती है और बारिश भी होती रहती है। बारिश हो रही है तो ऑफकोर्स विंड के अंदर ड्रॉपलेट्स होंगी होंगी। समझ आ रही है बात, एनी डाउट, श्योर, ओके। This region receives the majority of its rainfall during the winter month. Temperature in summer is average. Temperature कैसा रहता है, एवरेज, मतलब अराउंड 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, कितना रहता है समर में, और विंटर में 7 टू 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग लगभग हमारे जैसा ही हो गया। हमारे यहाँ पे समर में हाँ 45 48 चला जाता है, यहाँ 30 तक ही रहता है,
मतलब अभी वाला क्लाइमेट, अभी हमारा इतना ही है, अप्रोक्सीमेटली 28-30 समथिंग, राइट। The northern cap and the parts of the Karoo region have a semi-arid to arid climate. कौन सा एरिया है सेमी एरिड? ना ज्यादा तेज गर्मी है ना ज्यादा तेज सर्दी है, और थोड़ा ड्राई रीजन है, तो कौन सा एरिया है? कारू रीजन। कौन सा रीजन है? कौन सा रीजन है? Those areas are characterized by hot summers, low rainfall and significant temperature fluctuations between day and night. आपको डे एंड नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नजर आएगी, या तो एकदम से दिन में बहुत तेज गर्मी होगी और रात को एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो बहुत तेज सर्दी हो जाएगी। मतलब दिन में तो आप 35 डिग्री मान लें और रात को आप 8 या 10 डिग्री मान लें, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर राजस्थान के जैसा सम लाइक। The northern eastern part of the South Africa, including KwaZulu-Natal and Mpumalanga and Limpopo, have a subtropical climate. Yes, very interesting name, right? We have to learn them also. We have to learn them also. KwaZulu-Natal. ये नॉर्थ ईस्ट साउथ अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के नेम है। हाँ, लिपोपो, मपुमलंगा, ओके। Summers are hot and humid with heavy rainfall in the form of afternoon thunderstorm. यहाँ पे दिन में कभी भी थंडरस्टॉर्म हो जाता है, तूफान आ जाता है, बिजलियां कड़कने लग जाती हैं, बारिश बहुत तेज होती है, तो एकदम तो गर्मी, एकदम से बारिश। तो यहाँ का मॉइस्चर कैसा है? ह्यूमिडिटी वाला। कैसा मॉइस्चर है? ह्यूमिडिटी वाला। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? साउथ अफ्रीका में कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न ईस्टर्न में कौन कौन से प्लेसेस हो गए? क्वाज़ालू नटाल, मैपुलंगा, लिम्पोपो, लिम्पोपो, ओके। विंटर्स माइल्ड एंड ड्राई, टेम्परेचर इज 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है? 15 to 25। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कभी भी दिन में हो जाती है और मॉइस्चर कैसा रहता है? ह्यूमिडिटी वाला। Now the high veld region, which include major cities like Johannesburg and the Pretoria, experience a temperature climate and moderate rainfall. Summers are warm to hot. देखिए अब ये कौन सी जगह है? हाई वेल्ड रीजन। कौन सी जगह है? हाई वेल्ड रीजन। तो साउथ अफ्रीका की हाई वेल्ड रीजन मतलब ऐसे जगह जो थोड़े हाई पर है, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे है। तो हाई एल्टीट्यूड पे कौन सी दो प्लेसेस हो गई? जोहान्सबर्ग एंड प्रिटोरिया। जरा मैप में देखें, चलिए मैप में आइए एक बार पीछे। जोहान्सबर्ग एंड प्रिटोरिया मेंशन हियर, आ जाइए। इट्स प्रिटोरिया। देखिए ये सी लेवल से थोड़ा ऊंचा है, हाइट पर है, देखिए हाई एल्टीट्यूड पे दिख रहा है। अब क्या कह रहा है ये देखिए जरा, ये कह रहा है कि जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया में टेम्परेट क्लाइमेट रहता है और कभी कभी मॉडरेट रेनफॉल हो जाती है। मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है। वहां का टेम्परेचर रहता है 15 डिग्री टू 25 डिग्री। इससे तो इंडिया बड़ा है। Now, the coastal areas of the Eastern Cape have a moderate climate influenced by the ocean. Summers are warm and winters are mild. Rainfall is distributed throughout the year, which is a tendency for more rain in the warmer month. देखिए गर्मी के मौसम में साउथ अफ्रीका में कभी भी बारिश हो जाती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज लाइज बिटवीन द टू ओशन। फर्स्ट इज अंटार्कटिका एंड इंडियन ओशन। तो यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो वी ऑल आर रेडी टू गो हियर। हम जाना चाहते हैं सब यहाँ पर, राइट। नाउ एग्रीकल्चर इन साउथ अफ्रीका, किसके बारे में पढ़ेंगे? Certain region experience water scarcity due to the irregular rainfall pattern and increasing the drought. देखिए
कई रीजन्स ऐसे भी हैं जहां हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल है, तो कई रीजन्स ऐसे भी हैं कि जिस वेदर में या हम कहें जिस मंथ में उनको रेनफॉल की जरूरत है उस वक्त वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। तो सारा क्या होता है, जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है और वहाँ पर फूड की स्केर्सिटी हो जाती है। और कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे इतना इतना पानी आता है, इतनी रेनफॉल हो जाती है कि वहाँ पे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। मतलब कुछ एरिया ड्रॉ है, कुछ एरिया ड्राई है हमारा, और कुछ एरिया आपका फ्लड वाला है, बाढ़ वाला है। गॉट इट? This scarcity poses challenge for the agriculture, water supply and environment health, necessitating water management strategy. The variability in climate influences the lifestyle and livelihood of Southern Africa. It impacts tourism pattern, agriculture practice and the availability of natural resources leading to regional economic differences. देखिए यहाँ का क्लाइमेट जो है इतना वेरिड है, इतना अलग है, इतना डिफरेंट है कि एज कि ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि प्लीज कम एंड विजिट अस, क्योंकि यहाँ पे आपको सब तरह का वेदर देखने को मिलेगा। Okay, class? So, class, we will continue this chapter tomorrow also. Okay, I hope you like this and you understand. Any query regarding till here? If you have any doubt, you can ask me. So, tomorrow we will continue this chapter. Tomorrow we will move to South Africa. Okay, till then, stay in here. Okay?